وہ بحث پر آتے ہیں، توجہ فرمائیں، وہ بحث نہ رجے میرے جوانوں تک، ملے گا نہیں آپ کو بہت آسانی سے کتابوں میں میٹر۔ جو خدا نے مجھے نوازا ہے میں آپ کو دے رہا ہوں، میری کوئی اوقات نہیں ہے، میں ایک پوسٹ مین ہوں، جو وہ تمہاری نسلوں کو بتا دیتا۔ ہائے ہائے، شریف زادوں سے لڑنے آیا ہے۔ جملہ سنیں عزیزو، اس سے لڑنے آئے ہو کہ کرم اس رب کا ہے جس نے حرام و حلال کی نسل کو اس کی محبت پہ رکھا۔ ناظرین، پروگرام ہمارا سماج اور ہم میں قیصر رضا حسینی کا سلام قبول کیجئے اور آپ کا خیر مقدم۔ آپ دیکھ رہے ہیں صداقت نیوز نیٹ ورک۔ آج اس خطبے کا وہ چیپٹر ہے جو مجھے بہت عظیم ہے، اور یہی وجہ تھی کہ لوگ مخالفت کر رہے تھے۔ اگر آمادہ ہیں تو میں پیچھے سے دوہرا کے شہزادی کے اس جملے پر آتا ہوں۔ ایک جملہ ہے، صرف ایک لفظ، یوں کہہ لیں 2 لفظ، جس پر 1100 سال سے بحث ہو رہی ہے، چونکہ شہزادی کا جملہ ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ جب شہزادی نے اللہ کی حمد کی، حمد و صلاح کی، جس نے عزت کا چشمہ میرے دروازے سے جاری کیا، رسول اللہ کی تعریف کی، اور گواہی دیتی ہوں کہ اللہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے عبد ہیں، اور آپ غضبناک ہو کے کہا اونٹ کے چرواہوں کی اولادو۔ لیکن ایک جملہ کہہ دیں، شہزادی نے تبرہ کا سلیقہ سکھایا ہے۔ ہائے ہائے، شہزادی نے کیا کہا؟ بڑا غضب کا، کس سے کہا؟ جسے تاریخ اپنی بیساکھی پہ اٹھائے ہوئے ہے۔ حافظان حدیث کو کہا، حافظان قرآن کو کہا، سو کالڈ صحابہ کو کہا، کیا کہا؟ اے اونٹ کے چرواہوں کی اولادو۔ جس وقت میرا بابا تبلیغ کرنے آیا تھا، تمہاری اوقات کیا تھی؟ یہ خطابت ہے، تمہاری اوقات جانور کے پیروں سے کچلی ہوئی گھاس کی طرح تھے۔ ہائے ہائے، مطلب کیا ہوتا ہے؟ جانور جس گھاس کو کچل دیتا ہے وہ کسی مصرف کی نہیں ہوتی۔ یہی شہزادی نہیں رکی، غضب کا جملہ ہے، اور گودال میں، چھوٹے سے تالاب میں رکے ہوئے پانی کی بدبو کی طرح تم۔ پھر مولا کائنات کی تعریف کیا اور خطاب کر کے کہا علی کا دفاع ہے، خدا کی قسم وقت نہیں ملا مجھے، ورنہ ہر لفظ پر علی کا دفاع ہے۔ شہزادی نے اپنی پوری زندگی علی کو دیا ہے، علی کے دفاع میں دیا ہے۔ کیا کہا؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اس سے بیعت کا مطالبہ کرتے ہو، اسے ورد کر لو، ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھنا، اس سے تم بیعت کا مطالبہ کرتے ہو کہ مدینے میں علی کے علاوہ کوئی مرد نہیں ہے۔ مدینے میں کیا جملہ ہے، کتنی بار پڑھا جائے، کلیجے میں ٹھنڈک نہ پہنچے تو مومن نہیں ہے۔ اس سے خطاب، چونکہ وہ آیا تھا نا بیعت مانگنے، وہ آیا تھا نا زہرا کے گھر پہ، کیا کہا؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ اس سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے کہ مدینے میں اس کے علاوہ کوئی مرد نہیں ہے۔ ارے کیا شرمندہ کیا ہے، اے بدر اور احد کے بھگوڑو، ہمت ہے تو جا کے روکو، ابھی بھی تبرہ نہ کریں، جا کے روکو نا۔ بدر و احد کے بھگوڑو، اگر میرا شوہر ابو سفیان نے جب تجھے گھیرا تھا، اگر میرا شوہر تلوار نہ اٹھاتا، تمہاری ہڈی بوٹیوں کا پتہ نہ چلتا۔ اب جملہ کہہ دوں آپ کے سامنے، خطابت کا جملہ ہے، شریف زادوں سے لڑنے آئے ہو۔ یہ تو علی کا کرم ہے، میں کیا کہوں، وہاں تک نہیں پہنچ پاؤں گا، یہ تو علی کا کرم ہے، اختیار رکھنے کے باوجود تمہیں چھوڑ رہا ہے۔ اب جملہ کہہ دوں آپ کے سامنے، ورنہ قسم اس خداوند عالم کی، میرے شوہر علی کو اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے، اگر وہ اشارہ کر دے تو تمہارے کپڑے سانپ بن کر تمہیں نگل جائیں گے۔ وہ تو میرے لیے کی شرافت ہے کہ تم نے اس حرکتوں کے بعد بھی وہ چھوڑتا رہا، اور تم سب کو پتا ہے اس کی طاقت کا۔ میں جملہ کہہ دوں، تمہیں شرمندگی سے بچانے کے لیے، اگر جملہ لے گے تو سلام ہے، تمہیں شرمندگی سے بچانے کے لیے اس نے بچپن میں کلے افضل کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اگر افضل کو چھوڑ دیتا، وہ تمہاری نسلوں کو بتا دیتا۔ ہائے ہائے،
अजीजों, उससे लड़ने आए हो कि करम उस रब का है जिसने हराम और हलाल की नस्ल को उसकी मोहब्बत पे रखा। यहाँ पे काजी नुरुल्लाह शूसरी कहते हैं कि शहजादी ने खुतबा बयानिया दिया, पढ़े ना तो कमजोर अकीदे वालों का दिमाग उड़ जाएगा, मुकस्सिर तो मर जाएगा। गुलू हो गया, गुलू हो गया, काहे गुलू हो गया भाई? गुलू कहते किसको है? अल्लाह बना दिया, कमाल है। इतनी तौहीद आपकी हल्की क्यों है? कली के फजाइल से जख्मी हो जाए छोड़ते हैं, वो बहस पर आते हैं। तवज्जो फरमाएं, वो बहस पर मेरे जवानों तक मिलेगा नहीं आपको बहुत आसानी से किताबों में मैटर। जो खुदा ने मुझे नवाजा है मैं आपको दे रहा हूं, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं एक पोस्टमैन हूं जो बैठा हुआ हूं। तवज्जो फरमाए दाने मोहतरम। उसके बाद मौला की तारीफ करने के बाद कहा अय्युहन्नास इल्मू अन्नी फातिमा। शहजादी ने फैसला कर दिया एक जुमले में, क्या कहा? अय्युहन्नास। बॉम्बे के मोमनी ले जाइएगा जुमला, अय्युहन्नास, ऐ लोगो। बैठे हुए थे मुसलमान, हाय हाय, बैठे हुए थे सहाबी। बीबी ने न सहाबी कहा न मुसलमान कहा, ऐ लोगो। यहां पर बीबी तासुब से काम नहीं ले रही थी, अपने बाप की हदीस की आबरू रख, हाय हाय, अपने बाप की हदीस की आबरू रख रही थी कि जिसने इसको अजियत दिया उसने मुझे अजियत दिया, जिसने मुझे अजियत दिया उसने अल्लाह को अजियत दिया, और अल्लाह को अजियत देने वाला काफिर भी है, लानती भी है। कभी मुसलमान कह के नहीं बुलाया। अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इल्मू, जानो, अन्नी फातिमा। एक लफ्ज में दरिया समो दिया है, मैं फातिमा हूं, मैं फातिमा हूं। क्यों कह रही है? ये जानते नहीं है क्या? इस फातिमा के पीछे सारी फजीलत है। सिद्दीका मैं हूं, मुहद्दसा मैं हूं, राजिया मैं हूं, मर्जिया मैं हूं, करीमा मैं हूं, मैं सिद्दीका हूं, ये नहीं। अगले जुमले में वजाहत किया है। अगला जुमला क्या कहा? मैं फातिमा हूं, फातिमा हूं पहचानो। क्यों कहा मैं फातिमा हूं? फजीलत को याद दिला रही थी। ये क्यों कहा कि मैं फातिमा हूं? तुम वही लोग तो हो कि जब नजरान के ईसाई आते थे, एक ग्रुप था नजरान के ईसाइयों का, मुबाइला तो आपने बहुत सुना है, लेकिन उसकी हिस्ट्री सुनिए। नजरान क्या था? ये नजरान एक सऊदी अरब में मरकज था, जैसे हमारा कुम और नजफ है, ईसाइयों का मरकज था, उलमा होते थे। जब उन्होंने सुना कि मोहम्मद मुस्तफ़ा है मुसलमान के, कहते हैं अल्लाह का बेटा नहीं है, तो मुनाजरा करने आए। शराफत से आए तो शराफत से मिले। बैठ के बहस होती थी तो रसूलुल्लाह कुछ नहीं बोलते थे, आयत आती थी, 40 आयत आई है, 40 दिन आए, लेकिन ये मानते नहीं थे। अल्लाह दलील देता गया। जब 40 दिन हो गए तो अल्लाह को कहना चाहिए था, देखिए सिचुएशन को समझिए, दलीलें हैं, ये आर्गुमेंट का मैटर है। आपको अल्लाह को कहना चाहिए था कि रसूल बहुत हो गया, अब तलवार निकालो, इनसे लड़ लो। हम कह रहे हैं और ये हमारी बात नहीं मानते। क्या कहा? अब अगर ये कुरान से नहीं मानते हैं, पहले बैत ले आओ। अब ये कुरान से नहीं मानते हैं तो अहले बैत ले आओ। अल्लाह ने बता दिया कुरान काफी नहीं है। यही है ना, कुल तालो, कहो इनसे आओ। अगर मैं आज की ले आओ, लड़ते आओ। अपने बेटों को लाओ, अपने बेटों को लाएंगे, अपने नफ्सों को लाओ, मैं अपने नफ्सों को लाऊंगा, अपनी औरतों को लाओ, मैं अपनी औरतों को लाऊंगा। अब लोग इधर उधर बातें करते हैं, मुबाहिले का लफ्ज समझेंगे, आपको खुद ही समझ में आएगा रसूल क्यों नहीं ले गए। कुरान को बहुत गौर से पढ़ा करें। ये अल्लाह कह रहा है, इनसे कहो ले आए, सुम्मा नबतहिल, फिर हम मुबाहिला करेंगे, तुम नहीं। मैं क्या कर, अल्लाह कह रहा है हम मुबाहिला करेंगे। ये कहता ना मोहम्मद तुम मुबाहिला करना, हम करेंगे। एक अकीदे का जुमला कह दूं, अजीब बात है कुरान मजीद में, कहीं कहता है मैं खालिक,
کہیں کہتا ہے میں رازق، کہیں کہتا ہے ہم رازق، کہیں کہتا ہے میں نے خلق کیا، کہیں کہتا ہے ہم نے خلق کیا۔ آیت اللہ وحید خراسانی کی کتاب ہے حق المبین، اس میں لکھتے ہیں کہ جب امام کا ظہور ہو گیا میری زندگی میں تو وارث جملہ لے جائیے گا، وارث قرآن کو سلام کر کے پہلا سوال یہ کروں گا، توجہ کریں، وارث قرآن سے سوال کر کے سلام کر کے پہلا سوال کروں گا، اے قرآن کے وارث یہ بتا دے میں اور ہم کا راز کیا ہے۔ اگر یہ موضوع نہ ہوتا تو میں آج آپ کو بتاتا کہ میں اور ہم کا راز کیا ہے، لیکن موضوع ابھی ہمارا ہے نہیں، موضوع خطبہ فدق ہے۔ ہم مباہلہ کریں گے، بلاؤ انہیں۔ مباہلہ کیا ہوتا تھا؟ عربوں میں تلوار سے جنگ بچنے کے لیے تھے، اٹھتی تلوار تو لڑتے ہی رہتے تھے، مرتے ہی رہتے تھے، تو تلوار کی جنگ سے بچنے کے لیے دوسرے راستے نکالے، مقابلہ، منافرہ، مضاربہ، مباحثہ، مباہلہ۔ تاریخوں میں ہے کہ جو اس طرح کی گالی گلوچ والی برادری تھی، تاریخوں میں عرب کا دستور تھا۔ منافرہ کسے کہتے تھے؟ ہنسیے گا آپ، جو جتنی گالی بکلے۔ اچھا سیکشن بٹا ہوا تھا، یہ میں ایسے نہیں پڑھ رہا ہوں، تاریخوں میں ہے کہ جو اس طرح کی گالی گلوچ والی برادری تھی، ان میں امیہ والے بہت تھے، امیہ والے بہت تھے، اور منافرے کی وجہ سے امیہ کو مکہ چھوڑنا پڑا تھا، ہار گیا تھا۔ تو جو جتنی گالی بک لے اسے منافرہ کہتے تھے۔ شریف لوگ کیا کرتے تھے؟ مباہلہ۔ مباہلہ کیا ہوتا تھا؟ عرب میں مباہلہ کیا ہوتا تھا؟ مباہلہ یہ ہوتا تھا کہ دو شریف خاندان آپس میں لڑ گیا، غصے میں تلوار نہ اڑ جائے تو بلایا جاتا تھا، پنچایت بیٹھتی تھی کہ آپ اپنے ہاں جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ لے آئیں اور آپ لے آئیں، جن کے زیادہ ہیں ان کی بات مانی جائے گی۔ پتہ نہیں اس کو عرب میں مباہلہ کہتے تھے۔ بچوں تک بات پہنچ جائے، ایک ایگزامپل دیتے ہیں۔ دو خاندان تھا، لڑ رہا تھا آپس میں، آؤ بیٹھو، لڑو مت، تلوار نہ چلاؤ۔ اب ایک خاندان میں 5 ڈاکٹر، 2 IAS افسر، ایک وکیل ہے نا، آگے 7-8 آدمی۔ دوسرے خاندان میں 8 ڈاکٹر، 4 IAS افسر، 2 جج۔ تو جن کا مرتبہ زیادہ تھا ان کی بات مانی جاتی تھی۔ ہائے ہائے، اللہ نے کہا انہیں بلاؤ، مباہلہ کریں گے۔ مباہلہ پرسنالٹی پہ ہونا ہے۔ تو ادھر سے 3 آئیں گے، عیسیٰ آئیں گے، تو ادھر سے فخر عیسیٰ جائے گا۔ ہائے ہائے، ادھر سے عیسیٰ آئیں گے تو ادھر سے فخر عیسیٰ جائیں گے، ادھر سے مریم آئے گی، ادھر سے فخر مریم جائے گی، ادھر سے جبریل آئیں گے، ادھر سے استاد جبریل جائیں گے۔ انی فاطمہ کا جملہ یہاں تشریح ہو رہا ہے، یہ قاضی نور اللہ شوستری کی تشریح ہے۔ انی فاطمہ، انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں۔ یہاں پہ تشریح وہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نا عام کتابوں کا میٹر نہیں ہے۔ پہنچے، یہ جو نجران کے عیسائی تھے یہ عالم تھے، پڑھے لکھے تھے، تو پڑھے لکھوں جیسی بات بھی کر رہے تھے۔ کہاں نہیں، آپ کہاں ہیں؟ پڑھے لکھوں جیسی بات کر رہے تھے نا۔ تو موبائل کی تاریخ طے ہو گئی، پہنچے وہاں تو نجران کا جو سب سے بڑا عالم تھا اس نے کہا میں تو نہیں جا رہا۔ کمیٹی بنائی، 8-10 کا جملہ لکھا ہے، اور سب عالموں سے کہا جو حواری ہوتے ہیں، وہ چھوٹے موٹے نہیں، بہت بڑے عالم ہوتے تھے، کہیں جا اہل بیت فلا نباہل وَإِن جَاءَ بِأَصْحَابِهِ فَنُبَاهِلْ۔ اگر محمد اہل بیت کے ساتھ آئے مباہلہ نہ کرنا، اگر اصحاب کے ساتھ آئے کر لینا۔ کیا جملہ ہے اس کا؟ اگر محمد اہل بیت کے ساتھ آئے مباہلہ نہ کرنا، اصحاب کے ساتھ آئے کر لینا۔ ہم جنہیں عیسائی علماء اپنے مقابلے کا نہ سمجھے، ہائے ہائے، جنہیں عیسائی علماء اپنے مقابلے کا نہ سمجھے وہ بغیرت علی کے مقابلے پر آگے میدان میں آتے ہی دیکھا، یہیں تک تو لانا تھا۔ انی فاطمہ،
यहीं तक तो लाना था। देखा, फौरन कहने लगे अच्छा कमिटमेंट क्या हुई थी? भाई आप भी मिसाल के तौर पर कोई एग्रीमेंट कराते हैं कमिटमेंट का, तो उसमें कंडीशन लिखी जाती है ना, नहीं होगा तो रिफ्यूज कर देंगे, हो जाएगा तो ये करेंगे। कंडीशन क्या लगाई गई थी कि झूठों पे खुदा की लानत होगी, जो हारेगा उस पे लानत होगी। ये कमिटमेंट कुरान में है कि नहीं है? जैसे ही सामने आए, देखा अहले बैत को, कहने लगे हमसे आप जिजिया ले लें, हम नहीं लड़ते। रसूल ने कहा भाई क्या बात है, कैसे कि हम ऐसी शख्सियत देख रहे हैं कि इशारा करे तो पहाड़ टल जाए। अब मुंबई के मोमिनीन जुमला सुनिए, जब ये 40 दिन आ रहे थे मस्जिद नबवी में, तो इन्होंने मोहम्मद मुस्तफा को नहीं देखा होगा, अली को भी देखा, हसनैन को भी देखा। ये कौन जात है, ये कौन जात है जिसे इन्होंने नहीं देखा था और देखते ही पीछे हट गए। ज़हरा ने कहा मैं फातिमा हूं। यह है दलील, और चल के बोला करो, डरे वो जिसका रहनुमा भागा हो। हम ऐसे को अपना इमाम मानते हैं जो अपने मानने वाले को तारीख के किसी मोड़ पर शर्मिंदा नहीं करता। चढ़ के बोलिएगा। कमिटमेंट क्या थी? जो हारेगा लानत होगी। ना ज़ियारत आशुरा में इन पे लानत, न ज़ियारत वारिसा में लानत, न कुरान में लानत। परवरदिगार कमिटमेंट कहाँ गया? तो ज़ुरारा बिन आयुन ने वारिस कुरान से पूछा लानत इन पे क्यों नहीं? आपने भी लानत बनी उमैया पे किया, आले मरवान पे किया, आले सुफियान पे किया, लेकिन इन पे क्यों नहीं? इन पे क्यों नहीं? जबकि कुरान में कमेंटमेंट थी, शर्त थी, मुस्कुरा के कहा वजह यह थी कि ज़हरा के मुकाबले से हट गए। अल्लाह ने कानून बनाया, जो ज़हरा के मुकाबले से हट जाए लानत से बच जाएगा, जो ज़हरा के मुकाबले पर आ जाए चाहे मोहम्मद का रिश्तेदारी क्यों ना हो, लानत का मियार ज़हरा के मुकाबले पर आना है। तभी कह रही थी अन्नी फातिमा मुकाबले पर ना हो, वरना कयामत तक लानत पड़ेगी, मेरी बाप की रिश्तेदारी नहीं बचाएगी। नहीं, एक जुमले पर कहां बात जा रही है? अन्नी फातिमा, ये एक इंडिकेशन था, ये एक इंतबाह था। हट जाओ, मान जाओ, फिदक दे दो, जो बैत गदीर में किया था पलट आओ, मैं फातिमा हूं, मुकाबले पे आए तो मेरे बाप की रिश्तेदारी भी नहीं बचाएगी। फिर आगे क्या कहा? मैं फातिमा हूं, कुछ गलत नहीं कहती, बल्कि जो कहती हूं वो हो जाता है। क्या अजमत है खुदा की कदम, मैं गलत नहीं कहती। यहां पर ऑप्शन नहीं दे रही हैं, यहां पे बता रही जो मैं कह रही हूं गलत नहीं है, फिदक मांग रही हूं गलत नहीं है। मैं तो वो हूं कि जो कहती हूं वो हो जाता है। नहीं पहुंचे आप? जो कह देती हूं वो हो जाता है। अरे तुम्हारे सामने की बात है, ईद का दिन था, बच्चों के पास कपड़ा नहीं था, मुझसे कहा कपड़े चाहिए, कहा दर्जी ले आएगा। अब फजाइल का गोशा सुनिए, कलेजे ठंडक न पड़े तो शिया नहीं हो। अजीब को गोशा है, जन्नत से दर्जी ले आएगा। जन्नत का भी लफ्ज नहीं था। अल्लाह ने कहा जिब्रील जा, फातिमा की आबरू रख, जबान की आबरू रख। क्या करूं? कपड़ा उठा और दर्जी बन के जा। जिब्रील जा, कपड़ा उठा, देख क्या रहा है, सोच क्या रहा है? जिब्रील कहता है मैं हैरान हूं। अल्लाह का क्यों हैरान है? जब आदम जन्नत से निकल रहे थे और तू उनके कपड़े उतरवा रहा था, तो मैंने तुझसे कहा था कपड़े के साथ बैठे, तो तूने कहा था जन्नत का कपड़ा बाहर नहीं जाता। हाय हाय, तूने कहा था कि जन्नत का कपड़ा बाहर नहीं जाता, आज तू मुझसे कह रहा है कपड़े लेकर ज़हरा के दर पे जा। अल्लाह ने कहा तुझे पता ही नहीं, जन्नत कहते ही उसे है जहां ज़हरा होती है। जन्नत कहते ही उसे है जहां ज़हरा हो।
اب فرش अज़ा का मर्तबा समझ में आया, किसी के घर में नहीं बैठे हो, जन्नत में बैठे हो। नहीं फातिमा, जब तेवर बदला, बस आ गया अपने आखिरी चैप्टर पे। मेरी निगाह में, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। वक्त हमारा हो गया, आपने टाइम नहीं दिया मुझे, वरना बहुत कुछ खजाने थे, लेकिन मैं मजबूर हूं। जब तेवर बदला, मैं फातिमा हूं, तो अब हाकिम कहता है आई क्यों है, दरबार में क्यों आई है? का तुझे नहीं पता तो दरबार में क्यों आई हूं? क्या सच है आपकी बात? आप मांग रही हैं, दे देता, लेकिन आपके बाबा ही ने कहा है नहनु माशरल अंबिया नारिस वला नूरिस, न हम किसी को मिरास देते हैं न किसी से मिरास लेते हैं। तवज्जो फरमाएं, मेरा आपके बाबा ही ने कहा है। अब यहां पर वकालत वाला आर्गुमेंट हो रहा है हाकिम से, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो क्या क्या आपके बाबा ही ने कहा है। शहजादी ने 2 दलीलों से काट दिया, दरबारियों से खिताब करके कहा तुम्हारे पास तुम्हारी बेटी हो, तुम्हारा दोस्त हो, बात पहले बेटी से कहोगे या दोस्त से? सारे मजमे ने कहा पहले बेटी से कहेंगे। कहा यह हदीस मेरे बाबा ने मुझसे नहीं कही, इससे कैसे कह दी? काज़ी कदलीनी ने चुटकी लेके कहा, शहजादी ने झिझोड़ दिया, तारीख का सिद्दीक और है, अल्लाह की सिद्दीक और। यह हदीस मेरे बाबा ने अगर मुझसे कही होती, मैं नहीं आती। मैं फातिमा हूं, मेरे बाबा से नहीं कि तुझसे कह दी। फिर कहा अच्छा, पूरे कुरान पे तेरा यकीन है कि आधे पर? कुरान में खुदा कह रहा है वरसा सुलेमान और दाऊद, सुलेमान की मिरास दाऊद को मिली, मिरास देने वाला भी नबी, मिरास देने वाला भी नबी। जनाब याकूब ने दुआ की, है सनी मेरे साले याकूब मुझे बेटा दे ताकि मेरी मिरास सुन तो जाए। भाई कुरान कह रहा है कि नबी की मिरास नबी को मिलती है, तू कैसा सिद्दीक है कि मेरे सामने झूठ बोल रहा है? तवज्जो फरमाए, यहां पे काज़िम कज़वीनी अजीब जुमला लिखते हैं, कहें शहजादी, शहजादी बनिया बक्कालों की औलादों से चंद खजूर के बाग मांगने नहीं गई थी, बनिया बक्कालों की औलादों से खजूर के चंद बाग मांगने नहीं गई थी, बल्कि बताने गई थी। कल मेरा बाबा जब कह रहा था कि कागज कलम लाओ हदीस लिख दे, तो कह के चले गए थे कि कुरान काफी है। आज जब मैं कुरान से दलील दे रही हूं तो ये हदीस ला रहे हैं, तो इनका ईमान न हदीस पर है न कुरान। अल्लाह सलामत रखे सबको। और इस पुराशोभ माहौल में जहाँ शियों को शिया बताना पड़ रहा है, इस समात को जिंदा रखे। बहुत लुत्फ आ रहा है, खुदा की कसम। मैंने बहुत प्रोफेशनल हूँ इस मामले में, सुन रहे हैं तो सुना रहा हूँ। न इनका ईमान हदीस पर है न कुरान पर है। का मेरा फितक वापस कर, कहता गवाह लाई है, उम्मे ऐमन को पेश कर दिया। शहजादी का आर्गुमेंट सुनिए, उम्मे ऐमन को पेश कर दिया। कहता है कनीज की गवाही कबूल नहीं है। मुस्कुरा के कहती हैं मैं कनीज की हैसियत से पेश नहीं कर रही हूं। कहा क्यों? कहा ये कनीज है रसूल की, और तू कहता है रसूल मिलाद छोड़ता नहीं। लुत्फाना बदरात को 2300 किताब यूं ही नहीं लिखी गई है। आर्गुमेंट देखें कितना अजीम है। मैं बहसत कनीज के पेश नहीं कर रही हूं, कनीज है रसूल की, और तू ही कह रहा है कि रसूल मिरास नहीं छोड़ते। क्यों नहीं कबूल करेंगे? हसनैन को पेश किया, का बच्चों की गवाही कबूल नहीं है। जब 2 गवाहियों को नकारा है, यह है तबर्रा का सलीका। 3 जुमले हैं अजीजों, और कयामत के जुमले हैं। 750 सफ़ा 2.5 घंटे का खुतबा कहा जाता है कि 2.5 घंटा, तारीख में नहीं है, मगर आप देखें तो इस तमाम खुतबे में जो ये 3 जुमला है बीबी का, वो गजब का है। जब 2 मंजिल पर उसने अपनी लिमिट क्रॉस किया, तो शहजादी अब दरबारियों से नहीं हाकिम को मुखातब किया। हाकिम कौन है पता है ना? अब खिताब किया हाकिम की तरफ, और पहला जुमला कहा वजलब सलबाब दीन, तूने दीन की चादर को इतना जल्दी मैला कर दिया, बंबई के मोमिन आधा आदमी बोलेगा ये बीवी का सबसे पसंदीदा मुझे जुमला है।
चादर कौन मैली करता है? बदतमीज लोग, बेगैरत लोग, यही तो खिताबत है। तूने दीन की चादर को इतना जल्दी मैला कर दिया, वरना तक काज़िमुल गावीन, रसूल के जमाने का गूंगा बोलने लगा। अगला जुमला सुने, वतल शैतान रासहु मिन मग़ज़रिही हातिफन बिकुम, और शैतान ने फिर अपनी पनागाह से सर उठाया और तुम्हें निदा दी। इस्तखलफकुम खिफाफा, तुम इतने गिर गए थे कि शैतान बुलाता गया और तुम भागते गए। वतल शैतान रासहु मिन मग़ज़रिही हातिफन बिकुम, और शैतान ने फिर पनागाह से सर उठाया और तुम्हें निदा दी। किसको शैतान कह रही थी? अगर सकीफा की तारीख आप मालूम है, किसको कह रही है? ये खिताबत है ना, किसको कह रही है? टारगेट वही है कि इख्तिलाफ को खत्म करके खड़ा करके कहता है इसको बना लिया। ये टारगेट वही, शैतान ने फिर सर उठाया और तुम्हें बुलाया। तुम इतने जलील थे कि फरारी के पीछे आ गए, बेगैरत के पीछे आ गए। इस्तखलफकुम खिफाफा, इतने हल्के हो गए, शैतान बुलाता गया और तुम चलते गए। ये तजर्रबकुम कबला, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी शैतान ने तजर्बा किया था। कहाँ किया था? आयतुल्लाह कज़वीनी शरह में लिखते हैं कि जब उहद में ये भागने लगे तो अली ने एक का रास्ता रोका। कहाँ भाग रहे हो? आवाज कान में नहीं गई? कहा आपके कान में आवाज नहीं गई कि मोहम्मद कत्ल हो गए? अली ने कहा नहीं। कहा तुम्हारे कान में आवाज नहीं जा रही है कि मोहम्मद मुस्तफा कह रहे मैं जिंदा हूं? उसने कहा नहीं। तो काज़ी कज़वीनी लिखते हैं कि उहद के मैदान में दो आवाज थी, एक रसूल की, एक शैतान की। अल जिन्सो यमीन वल जिन्स, जिन्स जिन्स की तरफ माइल होती। जो शैतान की जिन्स से थे वो शैतान की आवाज सुन रहे थे जो मोहम्मद की जिन्स से था। और शैतान ने फिर अपनी पनागाह से सर उठाया, आज भी सर उठा रहा है। देखिए, फिर मैं कह के जा रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी है, आपके मौला जाने। ये खैबर और खंदक पे मुंह बनाना छोड़ दे, ये मर्दों का मजहब है। अगर हज्जाज के जमाने में होते तो पता नहीं कहां भाग जाते। आप देखें ना कैसे कैसे शेर अली ने बनाए थे। मिसम तम्मार, खजूर बेचने वाला, कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था, जाहिरी बड़ा नहीं था, अकीदा बहुत बड़ा था। पकड़ के लाए गए। अल्लाह अकबर। जब मैं पढ़ता था तो एक उस्ताद थे आयतुल्लाह जवाद आमली, अभी भी है माशाल्लाह। उन्होंने एक बड़ी बात की जो मेरी ज़िंदगी को इसने हिला दिया है। वो कहते थे कि खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में कहा है वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, इन्हें रोको, इनसे सवाल होगा। क्या सवाल होगा? पहले तो सवाल कब्र पे होगा, मरेंगे, जनाजा पहुंचेगा, मलकुल मौत डंडा ले खड़े होंगे, कोड़ा ओड़ा, आपकी होगी हालत खराब, अली सामने होंगे। और आपको मालूम है कि बड़ा ऑफिसर सामने होता है। देखिए, कभी मौका मिला तो फिर आपके सामने बयान करेंगे। अपनी ज़िंदगी में कोशिश करें कि हुसैन के अज़ादारों में हुसैन लिख लें। स्पेशल ट्रीटमेंट है, स्पेशल। अगर इमाम हुसैन ने आपको अपने अज़ादारों में लिख लिया तो स्पेशल ट्रीटमेंट है, कोई पूछताछ नहीं है, किसी चीज़ की कोई पूछताछ नहीं है। लेकिन कौन बनेगा? जो अपना हर लम्हा हुसैन को दे दे। मजलिस पढ़े हुसैन के लिए, शिरकत हुसैन के लिए, तबर्रुक बांटे हुसैन के लिए, खिदमत करें हुसैन के लिए, फर्श बिछाएं हुसैन के लिए। कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, हमें नहीं लेना देना। जानते क्या होगा? क्या आप ज़ियारत आशूरा में नहीं पढ़ते अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शफ़ाअतल हुसैन यौमल वरूद? ये वरूद क्या है? इंसान पर सबसे सख्त लम्हा उस वक्त होता है जब वो कब्र में उतर रहा होता है। तो क्या दुआ करते हैं? परवरदिगार मुझे हुसैन की शफाअत से महरूम न करना जब मैं कब्र में उतर रहा हूँ। इसका मतलब हजरत अली के साथ इमाम हुसैन भी आएंगे, लेकिन किसके लिए? जिसे हुसैन अपनी फहरिस्त में लिख ले। फिर उसके बाद क्या होगा? जन्नत में जाने के 7 दरवाजे, एक नहीं है। उसमें से एक दरवाजा है
बाब उल हुसैन। और सातवां हमने दुआ क्या बताई है? अल्लाहुम्मा अदखिलना मिन बाबिल हुसैन। परवरदिगार मुझे दाखिल करना जन्नत में हुसैन के दरवाजे से। क्या होगा? 6 दरवाजे पे पूछताछ होगी। रुको, जन्नत का बोर्डिंग पास होगा, जाके सीट पर बैठना है। रुको, अभी कैसी गुजरेगी आपके ऊपर? ठीक है, रुक गए, हजरत अली आएंगे। क्यों खैबर खंदक को कह रहे थे बुरा? क्यों हमारे फजाइल पढ़ने वाले जाकिरीन पर उल्टे सीधे इल्जाम लगा रहे थे? क्यों कर रहे थे? जवाब है। फिर क्या करेंगे? सजा मुअय्यन करेंगे। अभी रुको, इधर आओ। बहुत से लोग कहते हैं और कंफ्यूज भी हैं, क्या करें, बात कह के जाना है। अब जो ये मुक़स्सिर है ना, ये हरबे इस्तेमाल करते हैं। एक तो कब्र के अजाब से इतना डरा दिया है कौम को, या तो बेचारा डर के इबादत कर रहे हैं, भाग गया इबादत से। तीसरा कुछ है ही नहीं। भाई कब्र पे अजाब शियों पे नहीं होगा, जहां अली होते हैं वहां अजाब नहीं होता। ये अजाब मुनाफिकीन पे होगा, अली के दुश्मनों पर, कि जाते ही जमीन भी शुरू हो जाएगी। कब्र पे अजाब होगा? कब्र पे कहां अजाब होगा भाई? अली आएंगे तो अजाब होगा। कॉन्फ्लिक्ट है ना बात में। फिर क्या कहा? जो हुसैन पे रोएगा जन्नत वाजिब है। अब ये कहते हैं रोने से जन्नत नहीं मिलेगी। तुम्हारे अब्बा की जन्नत है क्या? जिसकी जन्नत है वो कह रहा जो मेरे हुसैन पर रोया नहीं। कितना आसान कर दिया। हर रोज छठे इमाम के लिए सलवात की तस्बीह पढ़ा करो, आपको दे दिया जन्नत, दे दिया जन्नत। नहीं, रुलाएगा, रोने जैसी सूरत बनाएगा, जन्नत वाजिब है। मौलाना अगर जन्नत वाजिब है तो फिर बेनमाजिया क्या होगा? हराम खाने वालों का क्या होगा? गुनहगारों का क्या होगा? जवाब है आपके पास, जवाब सुन लीजिए। ये जो शिया बेनमाजी हैं, ये ना सोचे कि ये निकल जाएंगे ना, ये मजहब है, तमाशा नहीं है कि झूठ बोलो, गिबत करो, फितना करो, इत्तेहाम लगाओ, गुनाह करो, हराम खाओ, लूटो, मारो, रो रहे हैं हुसैन पे जन्नत मिल जाएगी। तो ये क्या हुआ? वो तो बेवकूफ है जो नमाज पढ़ रहा, उसको तो मुंह से बड़ा नमाजी थे ना, हम भी चल रहे हैं, तुम भी चल रहे हो। वो परवरदिगार पे बेवकूफ क्यों बना रहा था? नऊजुबिल्लाह। तो शिया कॉन्सेप्ट सुनिए, शियों पे जहन्नम हराम है, सजा हराम नहीं है, सजा है। और शियों के लिए खुदावंद आलम ने जेल बनाया है, बेईमानों के लिए, मोमिन के लिए नहीं। जेल, उस जेल का नाम है आराफ। जाके सूरह आराफ पढ़ें। 2 गुनाह जिंदगी में ना कीजिएगा, कभी माफ नहीं होगा बगैर सजा पाए हुए। अहले बैत इस गुनाह पे शिफाअत नहीं कराएंगे। मैं आपको जन्नत लिख के दे रहा हूं। 2 गुनाह कभी ना कीजिएगा। किसी मोमिन पे तोहमत ना लगाइएगा, वालिदैन को अजियत न दीजिएगा। मैं क्लियर कर दूं वालिदैन की अजियत का मतलब क्या होता है। आर्गुमेंट हो गया, वो भी नहीं करना चाहिए। अम्मा हम ये काम करेंगे, नहीं मत करो, नहीं करेंगे, गुनाह है बट काबिल माफ है। अजियत क्या है? बड़ी माजरत के साथ। अम्मा आप घर पहुंचे, माँ थी, उसने कहा बेटा मेरी दवा खत्म हो गई, लेके आओ। अभी ले आएंगे ना अम्मा, अभी तो थक के आए हैं, अभी ले आते हैं 2-3 घंटे में। माँ चुप हो गई। बीवी ने कहा जरा माल चलो, उठे चल दिए। माँ कह रही थी कि दवा ले आओ, तो तुम्हें थकन थी। बीबी कह रही है माल चलो, शॉपिंग करना है। इस कैफियत से अगर माँ को अजियत हो गई, माफी नहीं है, इस पे मिलेगी सजा, सजा मिलेगी। क्या सजा मिलेगी? इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए सदाकत न्यूज नेटवर्क। सदाकत अखबार सिर्फ अखबार ही नहीं, आपका दोस्त भी है। इसे पढ़िए और दोस्तों को भी पढ़वाइए। ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए सदाकत न्यूज नेटवर्क। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।